हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th वीडियो ऑन ITF। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 25, it is evaluate tan inverse 3 sin 2 alpha divided by 5 plus 3 cos 2 alpha plus tan inverse 1 by 4 tan alpha, where alpha minus pi by 2 से ज़्यादा है and less than pi by 2। इसका सॉल्यूशन हम इस पूरी एक्सप्रेशन को भी चेंज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेन अल्फा। इस पूरी एक्सप्रेशन को हम चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेन अल्फा। तो मैं पहले खाली सिर्फ इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। इट इज 3 sin 2 alpha डिवाइडेड बाई 5 plus 3 cos 2 alpha इज इक्वल टू 3। sin 2 alpha की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेन अल्फा, sin 2 alpha होता है 2 tan alpha डिवाइडेड बाई 1 plus tan square alpha divided by 5 plus 3 cos 2 alpha की वैल्यू in terms of tan alpha it is 1 minus tan square alpha divided by 1 plus tan square alpha। इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा 3 to the 6 tan alpha divided by 1 plus tan square alpha divided by एलसीएम ले लेंगे 1 plus tan square alpha। In numerator we get 5 into 1 plus tan square alpha plus 3 multiplied with 1 minus tan square alpha. This will be equal to 6 tan alpha divided by 1 plus tan square alpha multiply 1 plus tan square alpha divided by 5 plus 5 tan square alpha plus 3 minus 3 tan square alpha. This will be equal to 6 tan alpha को ये कैंसिल दोनों, बाकी हमारे पास बचा, जो बाकी बचा मैं उसमें यहाँ लिख देता हूँ 6 tan alpha डिवाइडेड बाई 5 plus 3 8 8 plus 5 minus 3 2 tan square alpha 2 cancel out, we are left with 3 tan alpha divided by 4 plus tan square alpha. So this expression is equal to this. Our question was tan inverse this expression is equal to this. So in place of this we write this expression 3 tan alpha divided by 4 plus tan square alpha plus tan inverse 1 by 4 tan alpha। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास tan inverse x plus tan inverse y which is equal to tan inverse
x plus y upon 1 minus xy, and thus this will be equal to tan inverse x y. So x plus y, that is 3 tan alpha divided by 4 plus tan square alpha. This is our x plus y. Y is tan alpha upon 4 divided by 1 minus x into alpha, and the value of x is 3 tan alpha divided by 4 plus tan square alpha into y. Y we have tan alpha divided by 4. Okay, on solving this expression we get this will be equal to tan inverse. On taking LCM, we get 4 into 4 plus tan square alpha. In numerator we have 4 into 3 tan alpha and plus tan alpha into 4 plus tan square alpha. In denominator, again LCM is 4 into 4 plus tan square alpha. In numerator we get 4 into 4 plus tan square alpha minus 3 tan square alpha. Tan square alpha equal to, cancel out, we get 4th is a 12 tan alpha plus 4 tan alpha plus tan cube alpha divided by 4 for the 16 plus 4 tan square alpha minus 3 tan square alpha. This will be equal to tan inverse 16 tan alpha plus tan cube alpha divided by 16 plus tan square alpha. On taking tan alpha as common, tan inverse tan alpha as common, in bracket we are left with 16 plus tan square alpha divided by 16 plus tan square alpha, and we are left with tan inverse tan alpha. ये cancel out. tan इनवर्स tan अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा होगी अगर अल्फा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो तो। हम जानते हैं tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 से लेकर π/2, और मेरे ख्याल से ये शायद हमें दे भी रखा है कि अल्फा की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही है, मतलब अपनी ब्रांच में ही है, एंड दस वी हैव इट इज इक्वल टू अल्फा. दिस इज अवर फाइनल आंसर. Okay, let's start another question. Write down (26) number. Solve sin inverse 6x
प्लस साइन इनवर्स 6√3 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 2. Okay, let's start the question. Sin inverse 6x इसको राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 6√3 डिवाइडेड x. From here 6x is equal to साइन इनवर्स वहां चला जाएगा तो साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 6√3 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बाहर निकाल रहा हूं साइन 90 प्लस साइन इनवर्स 6√3x. Students, you know sin 90 plus theta, it is equal to cos theta. Write down minus cos theta. ये थीटा है हमारा, तो लिखिए cos sin inverse 6√3x. बाहर cos है, अंदर sin inverse, तो जो बाहर है वो अंदर लिखा रही है. कैसे? वो राइट ट्रायंगल बना के साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया और हाइपोटेन्यूज हमारा ये हो गया. तो फिर ये बेस क्या आएगा? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट. एक का स्क्वायर तो एक ही हो गया माइनस, और इसका मैं स्क्वायर करूंगा 6 का स्क्वायर 36 और रूट 3 का स्क्वायर 3. 36 इंटू 3 108 x square and the square root of this. So we write here minus cos, in place of sin inverse we write cos inverse. Base upon hypotenuse, that is we get 1 minus 108 x square square root. This will be equal to minus cos inverse. So we get root 1 minus 108 x square. LHS था 6x, RHS है ये. It implies कि 6x is equal to minus square root of 1 minus 108 x square. अब तो ऑब्वियस है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 6 का स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर. यहाँ लाएंगे तो आई थिंक इट इज 144 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1. 10 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 144 एंड thus we get x इक्वल टू प्लस 1/12 एंड माइनस 1/12. लेकिन स्टूडेंट्स जो यहाँ से निकाले जाते हैं, जो ये x निकाला जाता है, इनको फाइनली ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करके वेरीफाई किया जाता है कि क्या ये हमारे दोनों आंसर सही है या फिर केवल एक ही आंसर सही है. तो अब वेरिफिकेशन करेंगे इस वैल्यू को लेकर और इस वैल्यू को लेकर. वेरिफिकेशन कर रहे हैं 4x इक्वल टू 1/12 को लेकर. वेरिफिकेशन x इक्वल टू 1/12 ओरिजिनल इक्वेशन में डालेंगे वैल्यू. हम डाला हमने इसके अंदर, तो साइन इनवर्स 6 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 1/12 प्लस साइन इनवर्स 6√3 इंटू एक्स और एक्स का वैल्यू 1/12. ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आना चाहिए राइट हैंड साइड के इक्वल. ओके, लेट अस चेक आता है नहीं आता है. तो दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ
और ये साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स ऑफ हमारा होता है 30 डिग्री, दैट इज π/6, और साइन इनवर्स अंडर √3/2 इट इज 60 π/3, it is equal to 90 π/2, which is not equal to the right hand side. Right hand side is minus π/2 and thus it is not equal to right hand side. तो thus जो हमने एक वैल्यू निकाली थी x equal to 1/12, it cannot be the answer, क्योंकि ये हमारी इस ओरिजिनल इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई करती। तो thus x equal to 1/12 is not an answer. Therefore x is not equal to 1/12. Let us check for this value of x. Now we take x equal to minus 1/12. LHS is sin inverse 6 into x, x का वैल्यू माइनस 1/12 प्लस साइन इनवर्स 6√3 into x और x का वैल्यू माइनस। नाउ दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स इट इज माइनस √3/2। यस, ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स हाफ, ये और ये माइनस साइन इनवर्स √3/2 माइनस साइन इनवर्स हाफ इज 30 डिग्री π/6, साइन इनवर्स √3/2 60 π/3, so it is equal to minus π/2, which is equal to right hand side, and thus x equal to minus 1/12 is the answer. तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सॉल्व करने पर अगर हमारे पास x की वैल्यूज आती है 1 से ज़्यादा, तो सारी वैल्यूज को वेरीफाई किया जाता है ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। हो सकता है कि अगर आपके पास x की 2 वैल्यूज आ रही है तो उन दोनों में से केवल एक ही आंसर हो, बिना वेरिफिकेशन के आंसर नहीं दिया जाता। इट मे बी रॉन्ग। ओके, लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। $27 number. If cos inverse x upon a plus cos inverse y upon b is equal to alpha, then prove that x square upon a square minus 2xy upon ab cos alpha plus y square upon b square equal to sin square alpha. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। We are given that cos inverse x upon a plus cos inverse y upon b is equal to alpha. एक टर्म को वहां लेके जा रहे हैं, cos inverse x upon a is equal to alpha minus cos inverse y upon b. Or we can write it x upon a is equal to cos of alpha minus cos inverse y upon b. इस एंगल को मान लिया a
और इस एंगल को हमने मान लिया बी। हमारा फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अप्लाई द फॉर्मूला, तो वी गेट एक्स अपॉन ए विल बी इक्वल टू कॉस ए मीन्स कॉस अल्फा इंटू कॉस बी, कॉस ये रहा बी हमारा ये एंगल है, कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, बी है कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी। x upon a will be equal to cos alpha, cos inverse से गया cos inverse we have y upon b plus sin alpha into sin of cos inverse y upon b। sin के साथ में क्या उसका एंगल है, ये है उसका एंगल। स्टूडेंट्स देखिए बारी, because you know sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, we know, or we can write it 1 minus cos theta whole square, same thing, square वहां चला गया तो sin theta becomes 1 minus cos theta square and the square root of this। साइन थीटा, साइन थीटा ये हमारा थीटा का काम करेगा, ये थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा इज कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी, कॉस थीटा cos theta whole square, cos theta whole square and the square root of this। sin ये पूरा थीटा हो गया, sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, थीटा ये सारा हो गया होल स्क्वायर, ये रहा होल स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, और वी कैन से x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन b into cos alpha plus sin alpha square root of 1 minus cos inverse से गया cos से गया cos inverse, we get y upon b, y upon b का तो स्क्वायर है तो y स्क्वायर upon b स्क्वायर। आंसर में आपको स्क्वायर दिख रहा है हर तरफ, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। तो फिर एक काम करते हैं, जो ये टर्म स्क्वायर रूट वाली टर्म है अब इसको तो रखिए उधर और बाकी टर्म को लेकर रहिए इधर, इस तरफ लेके आते चलिएगा। तो x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब क्योंकि आंसर में आपको दिख रहा है स्क्वायर है तो नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियस है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, देखिए आपने स्क्वायरिंग की है तो यहां से आपको ये मिलेगा x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी कॉस अल्फा और इसका होल स्क्वायर आपने किया, इसका भी तो स्क्वायर किया हमने तो इट इज साइन स्क्वायर अल्फा और स्क्वायर से कैंसिल स्क्वायर रूट तो वी हैव 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2xy cos अल्फा अपॉन ए बी इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा। आंसर के अंदर राइट हैंड साइड में आपको चाहिए ओनली साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा को तो छोड़िए वही, और इसको लेके आइए इस तरफ। तो वी हैव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और इस टर्म को लेके आ रही है इधर, इट बिकम प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। और वी हैव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसके अंदर भी है कॉमन, इन ब्रैकेट वी हैव कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। और मेरा ख्याल लास्ट में भी आपका आंसर वाला स्टेप है बस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, हैंस प्रूफ। देखिएगा एक अच्छा क्वेश्चन था वैसे ही। Okay, let's start another question. (28) number. If cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to pi, prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to 1. करते हैं इसको स्टार्ट। लेफ्ट हैंड साइड में भी है 3 टर्म्स, 2 टर्म्स को रखिए एक तरफ और एक टर्म को लेकर जाइए उस तरफ। वी हैव cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। ऑन टेकिंग cos बोथ साइड्स, दोनों तरफ cos से ऑपरेट कर रहे हैं, ऑन ऑपरेटिंग cos बोथ साइड्स, तो वी गेट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos पाई माइनस cos इनवर्स z। यहाँ पे फॉर्मूला आ गया हमारा cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b, cos a इट इज cos इनवर्स x, cos b है cos इनवर्स y, cos a cos b माइनस sin a sin b, sin a sin b इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा cos पाई माइनस, ये फॉर्मूला हमारा होता है माइनस cos थीटा, वी नो बिकॉज cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो 10 cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस
कॉस थीटा। यहाँ आपको x मिलेगा और यहाँ ये गया तो y मिलेगा माइनस साइन कॉस इनवर्स x। बाहर साइन है तो अंदर भी लेकर आइएगा साइन। कैसे? वह राइट ट्रायंगल बनाकर कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और साइन इसकी जगह पर हम लेके आ रहे हैं साइन इनवर्स। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस इंटू साइन। Similarly, cos inverse y will be equal to sin inverse 1 minus y square square root equal to minus cos से गया cos inverse z. Now x y minus square root of 1 minus x square square root of 1 minus y square equal to minus z. मेरा ख्याल है कि इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑब्वियस सी बात है, मालूम चल रहा होगा शायद आप लोगों को भी। z को यहाँ लेके आना है और इन दो टर्म को लेके जाना है उधर, स्क्वायरिंग करेंगे, टर्म्स को हम अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। तो देखिए कैसे करेंगे। एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियस सी बात है मेरे ख्याल से, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो वी गेट एक्स वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल स्क्वायर रूट, और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। आफ्टर टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट दिस स्टेप। ऑन सॉल्विंग a square plus b square plus 2ab 2xyz multiplying 1 minus y square minus x square plus x square y square cancel out। x को यहाँ ले लीजिए, y square को यहाँ ले लीजिए, और प्लस 2xyz तो यहाँ पर पहले प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस। गुड बाय।